Subhashini Gore from Chandala Homeopathic Medical College, and today we are going to discuss lecture 23 of RJT Kent lectures on homeopathic philosophy, that is the examination of the patient. Here's the concept. So it is basically all about the case taking. Okay, this lecture is all about case taking. So here we go. The importance of listening to the patient's own words. Aphorism 84. The patient's details his suffering, the persons who are about him relate what he has complained of, how he has behaved himself, and all that they have remarked in him. Here's the explanation. Hahnemann stresses that the patient should be allowed to speak in their own way without interruptions to describe their symptoms. This is crucial because the patient's personal expression captures the unique quality of their sufferings, which helps in finding the right remedy. The physicians must avoid imposing medical terms or judgments that could bias the patient's expression. Example, if a patient says, "I feel like my head is going to explode," this vivid description should be taken literally and not changed to a more clinical phrase like headache, as it conveys the intensity and nature of the suffering. So, this is like when a patient comes in your clinic and says he is feeling something like this and this and this kind of pain or sensation or location, you should write it as it is. देखो पेशेंट आके अगर आपको बताए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सर फट जाएगा, है ना, तो इसको आपको एज इट इज़ लिखना है कि उसका जो हेड है उसको ऐसा लग रहा है कि एक्सप्लोर होने वाला है. दैट इज़ व्हाट गोइंग टू राइट. बिना उसको आप देखो जब भी आप केस टेकिंग करो तो आपको पेशेंट को कभी इंटरप्ट नहीं करना है. लेट हिम स्पीक एवरीथिंग, देन यू कैन आस्क समथिंग एल्स इफ यू वांट. तो पहले उसको वो जो फील कर रहा है, उसकी जो डिजीज़ की पोर्ट्रेट है वो बनानी है आपको, है ना. तो वो जो फील कर रहा है वो उसका क्या है, एक्सप्रेशन है. अपनी डिजीज़ का जो एक्सप्रेशन होता है वो साइन एंड सिम्टम के फॉर्म्स में होता है. ठीक, तो आपको बिना उसको इंटरप्ट किए उस पेशेंट को उसकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है एज इट इज़. ठीक है, उसके बिना वर्ड्स को चेंज किए या बिना बायस हुए. ठीक है, और जो पेशेंट के रिलेटिव होंगे या अटेंडेंट होंगे उनकी भी आपको चीज़ें सुननी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट कुछ उनकी कुछ हैबिट्स होती हैं या कुछ ऐसी बिहेवियर होते हैं जो पेशेंट खुद नहीं जान पाता या नहीं समझ पाता. तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको उस अटेंडेंट को भी सुनना है, उनसे भी पूछना है. वो अटेंडेंट आपको बताएंगे सर वो ऐसा कर रहे थे या ऐसा करते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा. Next, recording the symptoms, keeping it simple. Here's the key point. The physician should write down the patient's symptom in exact words, including any idiosyncratic expression the patient uses. This ensures that the record truly reflects the patient's experience. Here's the explanation. The physician should not alter the patient's words unless correcting grammatical errors. Only synonyms that don't change the underlying meaning can be used. For example, a patient describing her menstrual periods as monthlies can have it written as menses, since both terms are synonymous. Example, if a patient describes feeling a tightness in my chest, a physician should write exactly there rather than simplifying it to chest pain, as the word tightness gives a more specific indication of the symptom. तो देखो एक पेशेंट है, वो आके कह रही हैं कि उनको मेंस्ट्रुएशन में पेन हो रहा है. तो मेंस्ट्रुएशन का अदर टर्म क्या हो सकता है, मंथ लाइज, मतलब मासिक धर्म. ठीक है, तो अगर वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रही है जिसका सिनोनियम मतलब जिसका अर्थ सेम हो, ठीक है, तो वो वर्ड आप चेंज करके अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो. बट आपको उसका जो एक्सप्रेशन है, जैसे कि मान लीजिए कोई और एक पेशेंट आता है, वो बोल रहा है कि मेरे चेस्ट में टाइटनेस लग रही, ठीक है, कंजेशन लग रहा है, या कुछ भी उसने ऐसे टर्म यूज़ की, तो आपको उसे चेस्ट पेन नहीं लिखना, आपको लिखना है टाइटनेस इन चेस्ट. तो इस तरह से आप उसकी कंप्लेंट रिकॉर्ड करोगे. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग. और इस तरह से क्या आप केस टेकिंग करोगे, ठीक है, बिना उसकी चीज़ों को बदले. Next, avoiding distraction and discretions. Key point, the physician should allow the patient to speak freely but should intervene if the conversation strays from important details. The goal is to maintain focus on the relevant symptoms without unnecessary distractions. Explanation. By keeping the patient focused on their symptoms, the physician can gather a clear and concise record. If the patient digresses into irrelevant details, it is important to gently steer them back. तो देखो आप मान लो कोई पेशेंट है, वो अपनी चीज़ें बता रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपने मेन सिम्टम या अपनी जो बीमारी है वो या अपनी जो केस टेकिंग है वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो कोई और बातें करने लग गया. ठीक है, तो उस केस में क्या करना है आपको, उस केस में आपको उस पेशेंट को बहुत ही जेंटली, बहुत ही धीरे से, बहुत ही आराम से उस पेशेंट को वापस केस टेकिंग में बैक करना है, जिससे वो अपना पूरा सिम्टम फोकस होकर और सही तरीके से अपना डिटेल दे पाए. Next, here's the example. If a patient begins discussing unrelated personal matters, like the physician should
Politely redirect the conversation, saying something like let's focus on how you are feeling physically right now. तो देखो कैसे करना है, इसका भी एक तरीका होता है. हमारे हर चीज़ देखो, मेडिकल जब आप मेडिकल लाइफ में आते हो तो हमारे पास एथिक्स होती है हर चीज़ की. हमें उस एथिक्स के अकॉर्डिंग ही चलना होता है. हमें पेशेंट को डिसरिस्पेक्टफुल नहीं कराना है या डिसरिस्पेक्ट फील नहीं कराना है. हमें उसको ये नहीं महसूस कराना है कि दैट वी आर इग्नोरिंग यू और वी आर that you are consuming your time and you are not doing related things that is helpful for your case. No, we have to gently say कि अच्छा ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली, ठीक है, भले वो उसकी पर्सनल मैटर्स हो या कोई भी चीज़ें हो, आपको क्या करना है, ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है या आपको कहाँ दर्द हो रहा है या क्या तकलीफ हो रही है. देयर इज़ ऑल्सो अ वे टू से समथिंग, है ना. तो आपको मेडिकली अपना एथिकली उसको फॉलो करते हुए ही कहना और करना है. ऑर्गेनाइजिंग द रिकॉर्ड for clarity. Here's the key point. The physician should organize the case record in a way that allows easy review. The best method is to divide the pages into columns with the specific headings so that the symptoms and the related observations are clearly visible at a glance. Explanation of properly organized records aids in a quick reference during follow-up visits. The patient's symptoms should be written down in one column, while another column can include details such as aggravating and ameliorating factors, and the third column for the remedy. Example, the page could be divided as follows. तो देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कॉलम बनाना है. एक तरफ आप डेट लिखोगे, एक तरफ आप सिम्टम्स लिखोगे, और उसके बाद थिंग्स प्रेडिक्टेड ऑफ द सिम्टम्स, मतलब जो भी कंप्लेन है वो लिखोगे. एक तरफ आप रेमेडी लिखोगे और उसका पेशेंट का एग्रेवेशन एम्यूलेशन लिखोगे. तो इस मेथड से क्या होता है, आप बहुत ही क्लियरिटी, बहुत सही तरीके से आपको एट ए ग्लांस सारी चीज़ें मिल जाती है. जब पेशेंट का दोबारा आपको फॉलोअप लेना होता है या आपको पेशेंट को रेफ़र करना होता है या कोई भी चीज़ें होती है, ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी ऑब्जर्वर. तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी ऑब्जर्वर. यहाँ सेकेंडरी ऑब्जर्वर कौन होगा, जो उनके अटेंडेंट होंगे, फैमिली मेम्बर होंगे, या जो केयर टेकर होंगे, या उनके जो फैमिली या फ्रेंड्स या कोई भी हो सकते हैं, बच्चे होंगे, ठीक है. Here's the key point. After the patient has described their symptoms, it is important to gather information from others who have observed the patient, such as family members or caregivers. Explanation. The physician should be cautious when gathering information from close relatives, as their emotional investment, such as wife or mother, may cause them to aggravate the patient's suffering out of concern. The goal is to obtain an objective view from disinterested parties, such as nurses or less emotionally involved observers. Here's an example. A wife might describe her husband's symptoms as much worse than they actually are because of her anxiety. So the patients may rely more heavily on statements from nurses who can provide more balanced perspective. तो देखो क्या होता है कि आपको जो अटेंडेंट है उनमें भी देखो, वाइफ, मदर, ये लोग जो फीमेल होती है ना, वो जनरली बहुत पॉजेसिव होती है, बहुत केयर टेकिंग होती है. और वो ज़रूरी नहीं है, अगर उसके लाइफ पार्टनर को वो देख रही है कोई तकलीफ़ है, उसका हस्बैंड किसी पेन में है, या मदर अपने चाइल्ड को देख रही कि वो पेन में है, तो वो ज़रूर उसको बताएगी कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, उसे बहुत दर्द हो रहा है. या वाइफ बताएगी कि मेरे हस्बैंड को बहुत तकलीफ़ है सर, या मैम आप इसे ठीक कर दीजिए, इन्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि ये सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे, परेशान है बहुत. तो वो क्यों कर रहे हैं, वो अपनी एनजाइटी, मतलब उनकी जो चिंता है अपने फैमिली मेम्बर को लेके. तो इस तरह से क्या हो सकता है, वो जो सिम्टम्स बताएंगी वो परफेक्ट नहीं भी हो सकता है कई बार. तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जैसे कि नर्सेज है या केयर गिवर हो गया, या जो कोई ऐसा पर्सन जो उनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते. देखो यार, जो फैमिली मेम्बर होते हैं ना, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, है ना. तो वो कभी कभी क्या है कि अपने बच्चे को, अपने फैमिली मेम्बर को दर्द में देख के वो उसे कभी कभी सिम्टम्स को एग्जैक्ट ना भी बताए. तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, जो पर्सन आपके पेशेंट से इमोशनली कम अटैच्ड हो, आपको उन्हें सुनना है, ठीक है. Next, observation of the physician. Key point. After collecting the patient's and relative reports, the physician should conduct their own direct observation of the patient. Here's the explanation. The physician should examine the patients physically and note any particular peculiarities in the urine, stool, or behavior. If these are normal, they do not need dilated descriptions. But if anything unusual stands out, it should be recorded. Example, if a patient has watery diarrhea with an unusual odor, this should be recorded. But if the stool appears normal, there is no need for an extensive description. तो देखो क्या होता है कि peculiarities भी होती है. पिक्यूलैरिटीज मतलब उसके यूनिक सिम्टम. जैसे मान लो किसी पेशेंट को डायरिया है, उसको डायरिया भी कैसे हो रहा है, वाटरी होता है, ग्रीनिश होता है, येलोइश होता है, या सेमी सॉलिड हो रहा है, या कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विद डायरिया है, डायरिया अल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन है. तो जब आपको उसका स्टूल लिखना होगा, या जब आप अपने सिम्टम रिकॉर्ड करोगे, तो आपको क्या करना, उसके कैरेक्टर को भी आपको मेंशन करना होगा, ठीक है, कि वाटरी डायरिया हो रहा है उसे, ठीक.
स्टूल जब लिखोगे तो आपने क्या लिखना है, वाटरी डायरिया। और अगर आपको लगता है कि उसका जो भी है स्टूल पास है या जो भी कुछ नॉर्मल है, यूरिन क्लियर है, तो आपको उसे क्या लिखना है, आपको नॉर्मली लिख देना, बहुत ज़्यादा उसको डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, ठीक है। अवॉइडिंग बायस एंड लीडिंग क्वेश्चन, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है केस टेकिंग का। आपको बायस होके या आपको लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है। पहले पढ़ते हैं की पॉइंट। द फिजिशियन शुड अवॉइड आस्किंग लीडिंग क्वेश्चंस और मेकिंग assumptions that might bias the patient's responses. Explanation: a question that leads the patient towards a particular answer, such as "Do you feel pain when you move?" may seek the answer. Instead, the patient should ask open-ended questions such as "Can you describe any discomfort you feel in your body?" Example: if a patient answers yes or no to a question, it's a sign that question was poorly framed, as it doesn't allow the patient to fully express their symptom. तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी केस स्टडी का, कि हमें लीडिंग क्वेश्चन नहीं करना है जिसमें हमें जवाब क्या मिला, येस और नो। हमें क्या पूछना है कि कैसा महसूस हो रहा है आपको, किस तरह का पेन हो रहा है आपको, या या किसी चीज़ से आपका पेन बढ़ता है, कम होता है, या किसी प्रॉब्लम है, किसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है आपको, या किसी चीज़ से आराम मिलता है। हमें ये नहीं पूछना है कि क्या इस चीज़ से आराम मिलता है आपको, क्या इस टाइम पे आपकी तकलीफ बढ़ती है। हमें पूछना है किसी टाइम पे आपकी तकलीफ बढ़ती है, किसी चीज़ से आराम मिलता है, किसी चीज़ से तकलीफ बढ़ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन करना है, ना कि लीडिंग क्वेश्चन करने। ऐसा क्या होता है कि जब आप लीडिंग क्वेश्चन करते हो, येस और नो बोल देता है पेशेंट, वो अपनी एक्चुअल एक्सप्रेशन दे ही नहीं पाता डिजीज़ की, ठीक है। जो सिम्टम होते हैं, उसके कैरेक्टर होते हैं, वो आपको बता ही नहीं पाता, क्योंकि आपने तो उसे ऐसा क्वेश्चन कर दिया जिसमें उसने हाँ और ना में जवाब दे दिया, बट वो अपना कैरेक्टर नहीं बता पाया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करने हैं। Key question to ask the patient, key point: in order to collect thorough data, the physician must ask detailed question about the symptoms and their characteristics. This includes the location, quality, time of the day, aggravating and ameliorating factors, and the duration of symptoms. Explanation: the physician should aim to understand the exact nature of the pain. Example: sharp, dull, burning, and its location. Example: left, right, under ribs. Also, it's essential to determine whether the symptoms worse at night or better after eating, etc. Example of a patient with a headache should be asked about where is the pain located, what is the character of pain, what makes it worse and what makes it better. तो देखो जब ये पेशेंट है तो उसे किस तरह से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्या पूछना है, कैसे पूछना है, कितना पूछना है, क्या नहीं पूछना है, ठीक है। तो हमने देख लिया क्या नहीं पूछना, हम देखेंगे कि क्या पूछना है, ठीक है, क्या क्वेश्चन करना है। तो मान लो एक पेशेंट आता है, वो हेडेक के साथ है, तो अगर उसको हेडेक है, आपको पता है उसको हेडेक है, तो आप क्या पूछोगे कि कहाँ दर्द हो रहा है सर में। फिर क्या पूछोगे आप, किस तरह का दर्द हो रहा है। आप ये नहीं पूछोगे कि क्या थ्रोबिंग पेन है, प्रेसिंग पेन है, बस्टिंग पेन है। आप क्या पूछोगे, किस तरह का दर्द हो रहा है, आपको किस चीज़ से आराम मिलता है, दर्द में आपकी तकलीफ किस चीज़ से बढ़ती है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड ऑब्जर्वेशन की पॉइंट. Here's the key point. Hahnemann emphasizes that how the physician question the patient is as important as the question themselves. The physician must be patient and sensitive, allowing the patient to speak freely and ensuring the questioning doesn't impose a bias. Explanation: the physician should ensure that they are on the same level as the patient, not only emotionally but also linguistically. If the patient uses simple language or colloquialisms, the physician should adopt the same style rather than using medical jargon. Example: if a patient says, "It feels like my chest is being squeezed," the physician should write it down verbatim, even if it is not the clinical term of chest pain. तो देखो अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको कनेक्ट करना है अपने आप को, ठीक है, जिससे कि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो के अपनी सारी चीज़ें अच्छे से और सही तरीके से उसके वर्ड्स में बता सके। और आपको भी हमेशा क्या करना, अपने ओन वर्ड्स में कभी नहीं लिखना। पेशेंट की जो वर्ड्स है, जो वर्डिंग्स हैं, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है कॉलोक्विलम्स, मतलब जो उसकी खुद की टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, वो जो कंप्लेन दे रहा है उस वही लिखना है, हमें कभी भी वर्ड्स को चेंज नहीं करना है। द रोल ऑफ एक्सपीरियंस इन केस टेकिंग, तो देखो केस टेकिंग में रोल ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट और क्या है। विद एक्सपीरियंस द फिजिशियन विल डेवलप मोर intuitive and effective way of asking the right question to elect important symptoms, and their knowledge of materia medica will help them recognize the pattern. Explanation: as the physician becomes more experienced, they will be able to formulate question in such way that the important details are revealed, and they will have a better understanding of the remedies that match the patient's symptoms,
profile. Example, experienced homeopath can often identify key symptoms quickly, such as when a patient mentions thirst but only for a small amount or a particular type of food or drink, a clue that may suggest remedy like pulsatilla or phosphorus. तो देखो क्या होता है कि अगर एक पेशेंट आ रहा है, ठीक है, वो अपना क्या बता रहा है, सिम्टम बता रहा है, उस सिम्टम में से जो एक एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ होगा वो क्या करेगा कि उसे पता होगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो तुरंत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी निकाल लेगा और अपनी चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग, अपनी मटीरिया मेडिका के नॉलेज के अकॉर्डिंग अपने सिम्टम्स को रिकॉर्ड करेगा। तो ठीक है, ये होता है रोल किसका, एक्सपीरियंस का। द इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिट एंड कंसिस्टेंसी इन अ प्रैक्टिस। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है हैबिट और कंसिस्टेंसी हमारी प्रैक्टिस में। की पॉइंट, कंसिस्टेंसी इज हाउ द फिजिशियन कंडक्ट्स देयर एग्जामिनेशन इज वाइटल। डेवलपिंग गुड हैबिट्स ऑफ केस टेकिंग इंश्योर्स एक्यूरेसी एंड reliability in treatment. Explanation, repetition of careful structures examination becomes a habit that stays with the physician throughout their career. If the habits are not developed early, the physician risks creating errors in diagnosis and remedy selection. Example, a physician who consistently uses three-column method for recording symptoms will find it easier to manage complex cases and avoid mistakes. तो देखो क्या होता है कि हमारे जनरली होम्योपैथिक कॉलेजेस में क्या हो रहा है, हम नकली पर्चे बना रहे हैं बैठ के, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है केस टेकिंग का। तो देखो केस टेकिंग एक आर्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड थिंग, केस टेकिंग हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम केस टेकिंग करना सीखेंगे, हमें उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा और हमें नॉलेज होगा और हम सही तरीके से केस टेकिंग कर पाएंगे। तो देखो केस टेकिंग का सबसे सही मैथड क्या है, 3 कॉलम मैथड, मतलब एक में हम उसके सिम्टम लिख रहे हैं, एक में एग्रीवेशन एम्यूरेशन, एक में डेट और रेमेडी प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये जो हमारा मेथड है ना, हमें हमेशा क्या करना है, यही मेथड फॉलो करना है रिकॉर्ड कीपिंग का। और इस तरह से क्या होगा, हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स केसेस को भी बहुत सिंप्लीफाई कर सकेंगे और जो है बिना कोई मिस्टेक किए हम पेशेंट को सही रेमेडी प्रिस्क्राइब करके उसे क्योर कर पाएंगे। Here's the conclusion of this lecture. In this lecture, Hahnemann provides the invaluable insight into how to conduct a thorough patient examination in homeopathy, emphasizing the importance of careful listening, accurate recording, and objective observation. Developing these habits will not only help the homeopath in prescribing the right remedy, but will also contribute to long-term success in private practice. तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सही से केस टेकिंग करें, पेशेंट को सही से समझें, उसे सुने, ऑब्जेक्टिव सिम्टम भी रिकॉर्ड करें और हम इस तरह से सही रेमेडी प्रिस्क्राइब करेंगे और हम क्या है एक अच्छे होम्योपैथ बन पाएंगे और हमारी प्रैक्टिस जो है प्राइवेट प्रैक्टिस वो सक्सेस में टर्न होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।